पहले मंदिर कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने मंदिर मार्ग बताया था, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? बताया था। अब आप बता बता रहे हैं सर, ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है सर, ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है, धौलाकुआं जाता है सर ये रास्ता, ये मॉडल टाउन नहीं जाता सर। प्लेट आपने और हटा रखी है, दिखाने जा रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? देख लो जाने वाला होगा, छुट्टी हुई है, मत करिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप चेकिंग ले लो। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को लेके जा रहे हैं, आप किस थाने लेके जा रहे हैं? आपको तो बताया गया होगा ना, ऑर्डर दिया गया होगा, कुछ नहीं पता आपको? कितना आप अननोन जगह पे लेके जा रहे हैं, अननोन प्लेस पे लेके जा रहे हैं गाड़ी को जितना और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. वी आर कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर. एक्शन वाज टेकन, 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of
saying that, okay, we are going to work to improve the education system. We are going to work to fix the testing system. Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? Today regarding what regarding the first day of Parliament's monsoon session, what do you want to say? We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है. भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो. तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है. और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है. और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं. उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही. एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे. तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है. सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार. चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू है. 2 इश्यूज तो हम उठाए हैं. और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है. राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं. उसके और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है. सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है. ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते. सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है. अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती. और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं. और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई. भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो. एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं. तो आप क्या, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं. अगर नौकरी रोजगार दिए तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर, आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं. हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो. ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस. सोचिए. सांसद कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए. ये जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया. मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो. अंग्रेजों ने तो सुना है. अगर कोई धरना प्रदर्शन पे बैठा है तो उसकी बात सुनी. इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं. गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है.
इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है, और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। ठीक सर, थैंक यू। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. Show that. वहाँ जाके दिखाओ क्या हो रहा. जाओ. कैसे मार रहे हैं? Look at that. Has the government ever done this to any of the criminals? To the rapist? To the politicians sitting in power?
doing nothing. कांग्रेस ऑफिस के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया उन्होंने और तब से पीछे हटाते हटाते बहुत पीछे ले गए। कभी आंसू गैस के गोले छोड़े, कभी लाठीचार्ज करते। यहीं प्रोटेस्ट यहाँ पे मार्च था आज, तो वहाँ तक पहुँचे थे हम। जो सांसद के पीछे कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ तक पहुँचे थे हम। वहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था, पर ऊपर वो आंसू गैस के गोले लिए खड़े थे वहाँ पर। उससे आगे हमको बढ़ने नहीं दिया। अगर बढ़ने की थोड़ी भी कोशिश की तो हम पर डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एकदम आंसू गैस के गोले उन्होंने 10-12 छोड़े। बच्चे पागल हो गए, पागलों की तरह बच्चे जैसे कुत्ते फिरते ना, पानी जैसे फिरे बच्चे वहाँ पे। लोटे लोटे पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। वहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में घुस गए सारे बच्चे। कांग्रेस ऑफिस में घुसे तो वहाँ पर थोड़ा पानी मिला, सबको पानी नहीं मिला, बहुत बुरी हालत थी। इन्होंने वहाँ पे भी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए कांग्रेस ऑफिस में अंदर। वहाँ पे भी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। वहाँ बच्चे पागल हो गए और अंदर घुसकर मारा इन्होंने। कांग्रेस ऑफिस के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया इन्होंने और तब से पीछे हटाते हटाते बहुत पीछे ले गए। कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, कभी लाठीचार्ज कर रहे। बच्चों का पागल बना दिया। बहुत चोट लगी है बच्चों को। आपको भी लगी है? मेरे पैर के पास वो गोला पड़ता था, पैर के पास लगी थोड़ी गोला पड़ता था। मैं अपने कुर्ते से बची, पीछे से जैसे मारा ना तो वो मेरे कुर्ते में उलझी। और लेकिन हल्का फुल्का लगा तो मैं जीन्स से बच गई। मैं इसलिए जानबूझ के कुर्ता पहन कर आई थी। लेडीज को भी नहीं देख रहे। यहाँ पर कोई लेडीज पुलिस वाला नहीं है। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है और लेडीज को भी नहीं छोड़ रहे। लेडीज पुलिस वाला कोई नहीं है। जेंट्स पुलिस नहीं भेजा था मेरे ये कॉलर। जेंट्स पुलिस ऐसे पीछे से खींचा था, वो मेरा दुपट्टा फिर आ गया तो मैं भाग गई। लेडीज पुलिस नहीं है तभी ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेडीज के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज पुलिस आगे बस, लेकिन वो इतनी नहीं होती क्या वो सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी बहरी हो गई है, सुनने को तैयार नहीं है। खुद ही पत्थर हद कर फेंक रहे दी। हैं, खुद ही आंसू गैस के पत्थर भी फेंके, पुलिस वालों ने पत्थर फेंके हैं, सब बच्चों ने देखा है। खुद ही पत्थर फेंक रहे हैं। जवाब में आंसू गैस फेंकते सोचते हैं मतलब खुद ही पत्थर फेंके उसके बाद? एक बंदे को तो मैंने देखा है, पहले उसने पत्थर फेंका, फिर उसने ऐसे कैमरे से वीडियो बनाई। वो वही था उन लोगों का बंदा कि देखो ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने 2-4 पत्थर गिरे हुए, तुम इसलिए फेंक रहे हो ये पत्थर ताकि तुम्हें जवाब देगा मौका मिले, ताकि तुम आंसू गैस के गोले फेंक पाओ। ये खुद ही कर रहे हैं। लॉजिकली सोचो, हम लोग पत्थर फेंकेंगे, हम 4 पत्थर नहीं फेंकेंगे। हमें बदनाम करने के लिए करा इन्होंने। और इतने आंसू गैस के लगातार ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई है। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ऐसा लग रहा था हम कोई वॉर जोन में खड़े हुए। पूरा फेस ऐसा हो गया था कि जल रहा था। अभी तक नहीं गई है उसकी जलन। ये लोग बहुत बेशर्मी। जो घास होता है ना, दुब्बर का घास, उस पे जाके अपना फेस रगड़ा है कि कुछ उतर जाए। इतनी बुरी हालत कर दी थी। इतनी बुरी हालत बच्चों की कर दी उन्होंने। देखो अभी भी तैयार है लाठी चार्ज के लिए, अभी तैयार है। सबको दिखाओ, उनको सबको दिखा सकते हो आप, सबको दिखाइए अभी लाठी चार्ज के लिए तैयार। 4 बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए बार मार रहे वहाँ से। फैमिली का फोन आ रहा है, उनका फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ भैया आपके साथ? 5 बार प्रोटेस्ट करने बैठे। जितनी बार बैठ रहा हूँ उतनी बार मार रहे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जबकि फैमिली का फोन आ रहा है यहाँ पे। फैमिली से बात भी नहीं कर सकता अभी। क्या बोलूंगा, वो लोग मार रहे हैं हमें। मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ। तो कौन आपको मारा है? कौन नहीं मार रहा है? ये जितने पुलिस वाले सारे मार रहे हैं। पता नहीं पुलिस वाले की क्या है, इनके बच्चे हैं कि नहीं है। मुझे बीजेपी सरकार हटानी है। क्यों? मुझे बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? उसका हर एक पार्टी का मेंबर सारा करप्टेड हो चुका है। एक ही बात है, सारे के सारे करप्टेड हो चुके हैं उसके। ऐसा आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप ये बताइए कौन सा उसका नेता करप्टेड नहीं है? अब मैं चले जाऊंगा। क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ ये? लाठी चार्ज कहाँ पे? सर्कल पर, आगे सर्कल पर। यहाँ पे हमसे भीड़ आई थी ना, 1-2 लाख पब्लिक आई थी ना, पुलिस वाले से देख नहीं पाए तो फिर लाठी चार्ज कर दी। पुलिस वाले लाठी कर रहे थे ना, तो उसके बाद आर्मी होती ना, वो भी लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया। तो कम से कम 5 जने कम से कम खून आना। लेकिन आगे से ऑर्डर दे रहे ना, हम अभी नारा लगाएंगे, हर चीज का नाम, जय भीम का नारा लगा रहे, ठीक है, हर चीज का नारा लगा रहे, अच्छे नारा लगा रहे हम। तो इनको दिक्कत हो रही है, पुलिस वालों को दिक्कत हो रही है। आगे से ऑर्डर आ रहा है, भाई ये नारा नहीं लगना चाहिए, भाई करो लाठी चार्ज करो। हर चीज बाद में कोई बात करने आते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं। मेरे सामने लाठी चार्ज किया, मेरे सामने, हम पुलिस ऐसे बैठे ना, लाठी चार्ज कर रहे हैं। आती डायरेक्ट स्टार्ट। Has the government ever done this to any of the criminals, to the rapists, to the politicians sitting in power, doing nothing? They have an accountability. टैक्स दे रहे हैं ना, तनख्वाह से पैसा कटता है ना, दिखाइए ना, कटता है क्या नहीं कटता? 100 रुपए कमाते 30 रुपए दे रही हूँ ना, फिर क्या होता है उसका?
ये होता है? मेरे बच्चों पे डंडे मारोगे आप लोग जस्ट बिकॉज अपना हक मांग रहे हैं? पुलिस उनकी है, डंडे उनके हैं, सब कुछ उनका है, सिस्टम उनका है, डेमोक्रेसी है ये। दे हैव अ राइट टू स्पीक। उन माँ बाप से पूछो, वो देखो कैसे हो रहा है, देखो, लुक एट दैट। अगर आप गुंडागर्दी करवाना चाहते हो तो गुंडागर्दी करवाओ। This is ridiculous. वो देखो, जाओ वहाँ बाइट लो। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. Show that. वहाँ जाके दिखाओ क्या हो रहा है। जाओ। कैसे मार रहे हैं? Look at that. बता दिया, मत पकड़। मेरे को बता दिया पहले मैंने, और तुम मत लाओ। पहले बोले थे मैंने आपको, आई मत खड़ी मत हो। आगे बढ़ के पीछे में खड़ी है तू। आगे बढ़। गुस्सा आ रही है तू। आधा घंटा हो गया, तेरा क्या करूँगा मैंने? सर ये देखो, ये पुलिस फीमेल कांस्टेबल है ना, उसने उसका हाल है, मेरे बाल भी छीन लिए। क्यों ऐसे चोरे के चप्पल भी छीन लिए इन लोगों ने? सोचो, जो हमारे साथ के साथी थे उनको भी इतना मारा है। अभी संसद से थे, संसद से बाहर कर दिया, बाहर से इतना कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, पूरे बल के बाहर जाओ। क्या हो गया? लाठी मारी 10-20 और कह रहे यहाँ बैठो भी नहीं, जहाँ मारा वहाँ बैठने भी नहीं दो इन लोगों को। कहते आते क्यों? देश में सब बढ़िया चल रहा है, आई ना, है ना? देश तो अमेरिका बन गया आज, ये लोंडे को मार के। कहाँ से आप आए हो? बिहार से। क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे मेरे को सुता के मारा, जबकि मैं इधर वाले लोग ये पत्थर चला रहे थे। मैंने मना किया भाई सबसे फायदा नहीं है, पर फिर भी मेरे को कोई समझा नहीं, मारता। पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, बट यहाँ से हिलूंगा नहीं। मेरे घर में रिकॉर्ड करके कह दिया, सर को दिखा दो, तो अब देखना भी काम आ रहा है। 2 डंडे लगाए मुझे, 2 डंडा यहाँ पे 2 डंडा। अभी भी इनकी बर्बरता कम नहीं हो रही। अभी हम लोग अभी माफी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हम लोग को जंतर मंतर पहुँचने दिया जाए, जंतर मंतर हम लोगों को पहुँचने दिया जाए। आप लोगों ने हाथ क्यों उठा रखे हैं? हम लोग माफी मांग रहे हैं, हम लोग डर गए हैं। हम लोग शांत कुछ नहीं चाहते कि हम लोग जंतर मंतर तक पहुंचना है। हमारे साथी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, हमें उनके साथ ज्वाइन करना है, बस यही उनकी मांग है। कई साथी हमारे जख्मी हो गए, कई साथी जख्मी, कई को डंडा लगा है, एक का तो फ्रैक्चर आ गया पूरा, यहाँ से टूटा हुआ है उसका। ज्यादातर भीड़ अब कहाँ गई? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे भीड़ है, भीड़ को खदेड़ दिया गया है, भीड़ इधर उधर अभी बिखरी हुई है। सब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, सब जंतर मंतर में पहुंच रहे हैं सब लोग। चारों तरफ से भीड़ को बांटने की कोशिश सरकार के द्वारा समय समय पर सुबह से की जा रही है। जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस के घेरे हैं, दिल्ली पुलिस के घेरे हैं, उन सबको घेरने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम यूनिट ना होके हम बटे रह जाए और हमारा जो संसद मार्च का मकसद था आज का वो पूरा ना हो। तो अब आप जंतर मंतर जाके क्या करना चाह रहे हैं? जंतर मंतर जाके हमारे जो अभिजीत दिपके जी है वो वहाँ पे हैं, हम उसके साथ जुड़ के फिर से अगर वो जो आगे से जो भी प्लान बनाएंगे उसके तहत हम जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग या तो जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, या तो हमें वहाँ जाने दे, या हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने दे, सोका रोड जाने दे, हमें कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है। सुबह से लेके कितने आंसू के गैस के गोले दागे हैं, कितनी बार ही लाठियां चार्ज की है। वहाँ से भगाते हैं, कनॉट प्लेस से भगा के इधर, इधर से भगा के इधर, हम लोग कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं दिया, बीच रास्ते में लोग के 3 तरफ से हम लोगों को रोका गया है, 3 तरफ से। उनका सर फोड़ दिया है, लड़कियों के साथ बदतमीजी किया जा रहा है।